Ayush would not be able to join for probably today, maybe because he's moving out. He's coming back to India, for some time. So Oh, vacation? not for vacation. I mean, he's like, he's in some kind of, condition, so he's probably moving. I'm not sure exactly. Uh, Oh, okay. yeah, so probably he's going to stay in India for some time and then he will again get back to there. Yeah, He does not told me all I the got it. details, but yeah, I assume that, the information I Yeah, have. yeah, I got उसका it. उसका परमिट एक्सपायर हो चुका है इसलिए. I'm not exactly sure. हाँ, कुछ ऐसा, something like that. Maybe something Okay. like that. Yeah, we Yes. can understand. Yes, that's the situation here. I can understand. सबके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो ही इज प्रोबेबली Yeah. मूविंग फॉर सम टाइम एंड ऑफ कोर्स आफ्टर वो फ्रेंच का क्लियर कर लेता है तो ही विल मूव बैक, तो देखते हैं. ठीक है. लेट्स Yes. स्टार्ट विद रिलेशन एडजेक्टिव describing describe people adjective. It's called as les adjectives. Why les adjective? Because liaison between s and a, right, is a sound. Les adjectives, they're adjectives. So adjectives in English, in French is very different. In French, it's just opposite to what how we place them in English. So the placement of adjective is the most important idea that we need to learn in French, not the terms. Terms are the super simple. You just learn them as a vocab. But what is more important is to learn how to place them. In a sentence. The placement is the most important part here. So most adjectives, it's like writing n plus a na. So noun first and then adjective later. But there is an exception too, right? As we know already, कि French में तो there would be always an exception. तो यहाँ पे भी there is an exception. So if this is the rule that you put noun plus adjective, basically noun plus adjective. So there is an exception too, that works like अन्ना. एक इंग्लिश में हमारा वर्ड है ना, आई थिंक साउथ इंडियन लोग कहते हैं ना इसको अन्ना, हैदराबाद No, में. yeah, brother. अन्ना. Yes. तो ये ए एन मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे. So na and anna. So na is basically the rule and n is the exception. Basically, यहाँ पे how it would work is like adding adjective plus noun. ठीक है? Yes. So adjective plus noun. So basically, let's adjective. So noun, basically you put noun first. For example, I want to say a poor man. A noun is noun, right? You know that. This is a noun. This is a common Again, noun. yeah, like the slide is not open, like the screen. Okay, okay. I have not shared my screen. I'm very sorry. Okay, no I was problem. I explaining just since long. बताना तो चाहिए पहले that I'm not sharing. Okay, अभी it's visible. yeah, now it's I have yeah, now it's good. explained a lot of things till that time. So you should have asked me earlier. So it's les adjectifs, okay, which is called les adjectifs means the adjectives. So they in French it's like opposite to the English language as we write adjective plus, like how do we write in English? It's for example, rich man, right? Mm-hmm. This is the way we write in English. We don't say man rich, right? Or Yeah. man poor. We don't write in that way. In English, we first place the adjective and plus place the noun, right? An, anna wala rule is there. An. But here, in French, it's opposite to that. So we put na, like noun first and then adjective. So if I wish to write rich man, it would be a noun rich. And one more thing you must have observed, that if noun have a gender, so even adjective would have a gender, right? Or at least Yes. adjective would align with the gender of the noun. Isn't it so? अगर मान लो ये noun masculine है तो gender इसका क्या होना चाहिए? Masculine होना चाहिए. अगर मैं बोलता uniform, if it's masculine, तो यहाँ पे फ्रेंच में फिर ये अलाइनमेंट होना चाहिए, तो फिर ये रिश जो है ई के साथ हो जाएगा, फेमिनिन हो जाएगा. So uniform rich and a basically rich. Clear?
This example is clear. Noun plus adverb, adjective. समझ में आया? तो a gnome rich is a rich man. A farm rich is basically a rich woman. Clear? Hello? Yes, sir. Yes, yes, I hope my voice is audible. It's clear or not? Yes, sir. Oh, okay. yes. तो ठीक है. So what I'm trying to say is that it's n plus a का rule here in French, just opposite to the English का rule, which is a plus n, basically adjective plus noun. Here it works in a different manner. It's just opposite to that. So we do not say smart boy. We say boy is smart. Okay. We don't say rich man in French. We say man rich or man poor or man intelligent or man kind. No, kind के लिए there is a different form. I'll explain that. So as of now, this is clear. यहाँ तक this is super simple. Unknown Mm. intelligent, an intelligent man. Of exceptions and some common adjectives where before noun, adjective comes before noun. Basically, where it's a plus n, right? ये वाला चीज हो जाता है. Just like English. जैसे इंग्लिश का प्लेसमेंट है वैसे वैसे भी फ्रेंच में भी है, बट वो एक्सेप्शनल केसों में है. ठीक है. So Mm. those exceptional cases which are there are just similar to or same as the English ones. Okay, before I move to that, before I proceed to that, I already have explained that there is a different form for masculine adjective and feminine, right? Mm. So read out the second rule. It's saying that gender and number agreement. So if it's multiple many person, so it would be s at the end, right? So gender and number agreement means gender. If this is masculine, you should put a masculine, or if it's feminine, you should put a feminine form of adjective. If it's singular, you should put a singular form of adjective. If it's plural, it should put a plural form of adjective. Is that clear? Yes, sir. You might not be knowing different forms, but this should be at least clear that there should be agreement, and how they form the other forms look like, the singular, the masculine, the plurals, etc. We'll discuss. Okay, no issues. Uh, let's see, for example, masculine form of pati is pati, feminine form of small is patit. Because ऐसा क्यों होगा? E add होगा ना, feminine है generally, तो E add करके आप you can make it feminine singular. What is the case for masculine plurals? For example, there's a masculine plural noun. So pati of the masculine form, just addition of extra s at the end will make it plural again, masculine plural. For example, if some noun is feminine too and plural too at the same time, like, so you would add feminine के लिए extra e, and for plural you'll add extra s, so it would become patit s, right? ये फॉर्म्स समझ में आए कैसे फॉर्मेशन होता है? फॉर Yes, एग्जाम्पल sir. जैसे घ्रो, फेमिनिन हो जाएगा घ्रोध, ई ऐड कर दूं, राइट? मैस्कुलिन प्लूरल हो जाएगा घ्रोध, सिर्फ इस ऐड कर दूं. और फेमिनिन प्लूरल क्या होगा? पहले तो फेमिनिन के लिए ई ऐड किया और उसमें भी दिस इज प्लूरल, तो इस ऐड किया, तो घ्रो, घ्रोध, घ्रो, घ्रोध. तो ये दोनों एक की तरह साउंड करते हैं और ये दोनों एक साउंड करते हैं. तो मैस्कुलिन दोनों एक की तरह साउंड करेंगे और फेमिनिन दोनों एग्जैक्टली सेम साउंड करेंगे. मेरी बात समझे? तो पति जो सिंगुलर है और ये पति जो मैस्कुलिन प्लूरल है, सेम साउंड है. फेमिनिन सिंगुलर पतित और फेमिनिन प्लूरल पतित हैव एग्जैक्टली द सेम साउंड. बात समझ में आई यहाँ तक? इट्स क्लियर और नॉट? बताओ. हाँ जी. तो एडजेक्टिव में एग्रीमेंट और जेंडर एग्रीमेंट तो हमने कई बार पढ़ा है. नाउन में पढ़ा है, राइट? आर्टिकल में पढ़ा है, राइट? प्रोनाउन में पढ़ा है. बट यहाँ पे अभी ये नाउन वाला फीचर, इसीलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ, आई ऑलवेज से दैट द नाउन इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग. नाउन जो हमने लेसन पढ़ा था, और नाउन्स का जेंडर, जेंडर ऑफ द नाउन इज द सेंटर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज ग्रामर. ओके, ऐसा इसलिए बिकॉज सारी चीजें, आर्टिकल्स हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, सारी चीजें अलाइन होती हैं क्योंकि ये नाउन के इन एंड अराउंड यूज होती है, राइट? मैंने नाउन के लेसन में आई टोल्ड यू दैट नाउन कैन गो विथ टू थिंग्स.
One is article, which is la, la, le, or you, they, and other is adjective. मैंने बताया था नाउन के लेसन में। तो कोई भी नाउन है वो अ, यून, दे के साथ या ल, ला, ले के साथ जा सकता है, प्लस एडजेक्टिव के साथ भी नाउन जा सकता है। यानी कि नाउन हर बार अपने जेंडर से किस किस को इन्फ्लुएंस करेगा, आर्टिकल्स को और एडजेक्टिव्स को। तो आर्टिकल्स का इन्फ्लुएंस तो वी ऑलरेडी नो हाउ डज नाउन इन्फ्लुएंसेस द आर्टिकल। फॉर एग्जांपल अ नाउन व्हिच इज अ फेमिनिन प्लूरल, it would take up the verb which is lay, right? L-E-S, or maybe they, D-E-S, right? Just like that, this noun in adjective also, it will impact the different forms of adjectives: masculine, masculine plural, feminine singular, and feminine plural. I hope I'm able to convey this. ठीक है? Fine till here? Yeah. Okay, अखिल, थर्ड नंबर जो हमारा है यहाँ पे, कॉमन एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब पीपल। ये कुछ खास नहीं, बस मैंने लिस्ट डाउन किया है कि आप सब ये एडजेक्टिव्स पढ़ लो और आपको ये यूज करना है सेंटेंस फॉर्मेशन में, ठीक है? once you start structuring sentences you'll be using them. So for example, third one, how would you read it? Let's read them. Akhil, please start reading them, and let's learn them actually. Growth. Grow, not growth. Growth. Okay. Petite. First is pati, not patit. Yeah. Petite. Okay. House. Grow, Gross. gross, Mm, Ins. means, Zune. jun, Zune. it's jun, June. yes. View. Via, Via. एक साइलेंट होता है, बात किया था हमने पहले भी। Yeah. Via. VL. एल साइलेंट होता है, डबल एल यहाँ भी। VI, And VI, view. boo, View. Belay. it's boo, Bo. Belay. bell, Okay. यहाँ पे पढ़ते हैं एल, राइट? Mochi. It's mush, Mosh. or, Late. or lay. It's not late, Mosh. it's late. Late. Late, Uh, jyoti, gentle. jyoti। Jaunty. अच्छा, कॉन्सोनेंट एट द एंड साइलेंट होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था। Yeah, jaunty. कॉन्सोनेंट एट द एंड साइलेंट होता है, तो ये एल को क्यों पढ़ेंगे हम? नहीं पढ़ेंगे ना। Yeah, इट्स yeah, सिंपली ज्योति, yeah. यहाँ पे इट्स ज्योति। जो Jaunty. फुल साउंड है वो फेमिनिन के लिए, जो हाफ साउंड है वो मैस्कुलिन के लिए। ये आइडिया हेल्प करेगा आपको। अब keep in mind that half sounded word or half sounded sentences जो पढ़ रहे हो आप रीडिंग में, that's the masculine, and the full sound production is for feminine. So grand is for masculine and the grand is for feminine. The full sound is for feminine. मेरी बात समझ में आई? Mm-hmm. Okay, go ahead with the next one. Mechant. Mesha, Mechant. CH का साउंड क्या होता है? Yeah. Stop. Mechant. Okay, Mesha, Mechante. it's not Meshante, it's Meshant. Okay. Diligent. It's Diligent. Intelligent. Intelligent. टी को तो पढ़ना ही नहीं था, कॉन्सोनेंट एट द एंड अभी तो मैंने लिखा ऊपर ही। कोई भी कॉन्सोनेंट एट द एंड मत पढ़ो, ठीक है? सो इंटेलिजेंट, Intelligent. नो इट्स इंटेलिजेंट। देखो, Intelligent. आपको एक टेक्निक बता देता हूँ मैं। जहां भी ई एट द एंड लिखा है, क्या पढ़ोगे आप? Ah. ओ,
और जहाँ भी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं जैसे टी है या एक्स है, तो इन्हें पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है, इन्हें पढ़ोगे ही नहीं, नो रीडिंग। Yeah. आप पढ़ो अच्छे से, आप देखो पढ़ पाओगे। ट्राई रीडिंग दिस। But दैट stupid. स्टूपिड, यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे ना ई के लिए। Yeah. Stupid. यस, And draw. क्यों धो, यहाँ पे ई नहीं है अड्डा है। Yeah. इस Thought. केस में तो पढ़ेंगे, कहाँ नहीं पढ़ेंगे ये समझ में आ रहा है कि नहीं। when a word is ending in a e or in a vowel, तो आपको पढ़ना ही पड़ता है वो सेंटेंसेस पूरा। जहाँ पे कॉन्सोनेंट में ही एंड हो जा रहा है वहां पे नहीं पढ़ेंगे, समझ में आई बात। जैसे ये देखो मेशा, ये टी पढ़ोगे आप नहीं, बट ये टी के बाद ई अगर लगा हुआ है तो पढ़ोगे टी फिर, हाँ पढ़ोगे। बात समझ में आई। Yeah. ओके ठीक है, वो है The whole amusement. it's amusant, amusant और amusant। Amusant. View. Sérieux, See here. sérieux, Yeah. Say here. x Say is here. silent, sérieux, And timid. Timid. timid, आई को क्या पढ़ते हैं, E. ई पढ़ते हैं। Yeah. So te plus e is T. the, m plus e is Me. so timi, d plus Yeah. e is, d plus a is The. so timid, timid. Timid. Okay, fine. Move ahead. Travello. Travail, Travailla. Travello. travailleurs. Yeah. So travailleux में r नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे, और डबल एल साइलेंट है, travailleux. How to pronounce that? Pare. It's parzo, parzo. Ahasu. It's parzo, so sound. Yeah. Parezu. So parzo, Ahaso. paresseuse. Is okay. Okay. ये सारे एडजेक्टिव्स इन्हीं पर याद कर लोगे, क्योंकि मैस्कुलिन फेमिनिन दिया हुआ है। आपको प्लूरल क्यों नहीं दिया हुआ, क्योंकि प्लूरल लगाने के लिए सिर्फ एस ऐड करना है, मैस्कुलिन हो या फेमिनिन, इसलिए देने की जरूरत है। I hope it's clear, right? Yeah. Should be. Okay, so we'll move ahead then with the next। क्या है, सब एक्सेप्शन जो है इसका बहुत खतरनाक है, ये तो सच में डेंजरस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका एक्सेप्शन जो है, एक तो बहुत लंबा एक्सेप्शन है, बड़ा एक्सेप्शन है, और दूसरी बात कि दिस एक्सेप्शन इज सो frequent, so common that it does not seems like an exception. It's more like a rule rather than an exception. It's not even weaker than main rule that we just studied, that we write like noun plus adjective in French, right? We just read that. Like a nom pauvre, a garçon, riche, something like that, rich, poor, or that difference, which are not part of exception. So वहाँ पे आपने जैसे रूल जो देखा था ना, उससे उसी की तरह एक्सेप्शन भी काफी थिक है, बहुत मोटा है, बहुत ज्यादा है इसमें, और एक्चुअली बहुत ब्रॉड है और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड है। तो मैं एक्सेप्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ देन द रूल। लाइक दोनों उतने ही इंपॉर्टेंट है, जितना रूल है उतना ही एक्सेप्शन। तो हर बार की तरह एक्सेप्शन बहुत कम होगा ऐसा जरूरी नहीं था, यहाँ पे एक्सेप्शन ज्यादा है और फिर भी बहुत आसान है। उसके लिए आई हैव वन टर्मिनोलॉजी दैट आई यूज, इट्स बैंक्स। बैंक्स adjective based before a noun। so ये ऐसे adjectives के लिस्ट हैं
जो कि इनके बेसिस है, और उन्हें इन दैट केसेस वी प्लेस देम basically before the noun, right? Noun comes later, adjective comes before, just like English language, right? Mm-hmm. But याद रहे ये एक्सेप्शन है, भले ही एक्सेप्शन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल दे आर नॉट द रूल्स, बैंस, दे आर अपोजिट टू रूल। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट डज एग्जैक्टली मीन्स दिस बैंस। So B means all the adjectives which are related to beauty. A mean all the adjectives which are related to age. N means all the numbers which are related to numbers. G means all the goodness or badness, human behavior, or human type. S means size, small, big, large, all those size. Okay, small, medium, large. Then yeah. So what about beauty? Beauty can be words and like beautiful, right? Bow, belly, Beau and Jolie, and there's Bill and Beau. There's Jean Via Nouveau, basically कौन young है कौन बूढ़ा है, right? Via means old, and who is new basically. Jean means young. This Nouveau means either new or kind of newborn. Nouveau, okay? So ये beauty related और age related, number related, goodness badness related and your size related are basically all these exceptions। all ये सारे themes हैं, इसके बीच में जो भी verbs होंगे सारे के सारे verbs exception की तरह काम करेंगे। they will be working like adjective first and then the noun। so just like writing it's like writing a small boy। sorry, what I was saying, where I was banks I would write। So beauty is number, goodness, size, all of them are exceptions। So you just place adjective first, just English में लिखते हैं। Yes, a small boy लिखते हैं ना, little boy basically, ठीक है। So Okay. इसको आप फ्रेंच में कैसे लिखोगे? पोती गार्सों। अच्छा, ये पोती गार्सों एंड लिटिल बॉय सेम फॉर्मेट है, ये इंग्लिश है ये फ्रेंच है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है? फॉर्मेशन प्लेसमेंट बेस्ड डिफरेंस नहीं है, राइट? प्लेसमेंट बेस्ड डिफरेंस नहीं है, दोनों को दोनों सेम प्लेस पे प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। अग्री और नॉट? Yes. तो ये बात सिंपल समझ में आ गई होगी कि अच्छा ये जो बैंड्स हैं वो इंग्लिश की तरह काम करता है, राइट? अब ये काम आसान हो गया। अब मुझे बोलना है कि ब्यूटीफुल मैन, बेसिकली ब्यूटीफुल वुमेन, सो आई विल बी सेइंग बेल फार्म, और यूजुअली मींस होता है बेसिकली वेरी joyous, very very happy Funny. faced। no, it's not funny। jolie is like it's कैसे बोलते हैं हैप्पी फेस्ड पर्सन को, राइट? Oh, और okay. वो समथिंग लाइक कहते हैं दैट। ना भाई जोली नेचर का बंदा जोली। जॉली तो फनी होता है, इट्स नॉट दैट जॉली, ठीक है। हम्म, जॉली मतलब इंग्लिश में जो होता है इट्स फनी, राइट? तो उसका एक ओके। अलग वर्ड है, इट्स द होल फ्रेंच में इट्स फनी। दिस जॉली इज नॉट, jolly means it's more of a a person who is very happy faced person, okay। एक बार को डिक्शनरी में देखता हूँ क्या एग्जैक्टली, Yes. एक बार इसका मीनिंग चेक करता हूँ। एग्जैक्टली जॉली Yeah, मींस, yeah, 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 yeah. Now I remember. Yes, Jolie. Jolie means happy face. Yes. yes, remember that expression, हाँ। तो Yes. usually it's it's not, I don't think it's about funny, it's not about funny, you can see here it's about being Not funny. Yes. lovely, nice, it's not funny। Lovely, nice, happy. Yes,
तो ये मैं बताना चाह रहा था, आप लोग दूसरा कुछ समझ रहे हो, फनी कुछ और होता है, राइट? फनी मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो फनी है, राइट, ड्रोल है। वो फ्रेंच में इज डिफरेंट थिंग, इट्स होल। ये देखो, दिस इज व्हाट यू थिंक, मैं पहले जो आप सोच रहे थे, दिस इज फनी, ध्रोल। ये एडजेक्टिव यूज करोगे, ध्रोल, ठीक है, फनी के लिए। जोली नहीं यूज करोगे, वो गलत मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में जोली का मतलब फनी होता है, बट यहाँ नहीं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर अब। सो या, आई मीन या, दिस ब्यूटी रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो मैं, मुझे बोलना है यंग मैन, तो जन ओम, राइट, जनोम। Let's try forming some of them. You know, it's your task. Banks के साथ कुछ फॉर्म कर सकते हो आप? यहाँ पे देखो सारे adjectives के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। Try doing some of them and let me know, please. Take 5 minutes. ठीक है? I'm giving you 5 minutes of time. You can refer from some of the examples here. And आप अपने लिए banks पे 4 to 5 एग्जाम्पल्स लिखो, सब पे एक एक, ब्यूटी से रिलेटेड एक लिखो, एज से एक, नंबर से एक, 5। आप भी अपना अपना लिखो, यू नो, धनजीत विल रोट हिज ओन, you write your own, everyone will write their own for this, all of these, one for each, ठीक है? Go ahead. Care for the gender, you know, and the number of the noun, ठीक है? Write 5 of them. I'm going to give you 5 minutes. Your time starts now. 11:38 till 43 or 44 you can do. 44. नहीं सर, वो सेंटेंस लिखना एडजेक्टिव के साथ। सेंटेंस नहीं, बस एक एक ये एडजेक्टिव और नाउन के साथ बस दो वर्ड का सेंटेंस, ऐसे जैसे अबो, गार्सो, अपोजिफी। पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। ओके एग्जाम्पल देख लो, ऐसे लिखना है, आर्टिकल्स प्लस नाउन प्लस छोटा सा, ऐसे छोटा छोटा एग्जाम्पल जिसमें एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, ठीक है। ओके। मैं आपसे 45 में मिलता हूँ, 11:45, आपके पास 5 मिनट्स हैं। सब पे एक एक, सबके लिखने हैं ना? सब पे एक ओके। एक या दो दो, जितना लिख पाओ, एटलीस्ट एक एक लिखना है। अगर दो लिख सकते हो तो दैट्स वेल एंड गुड, बेटर फॉर यू, ठीक है। टेक 5 minutes, आई एम गोइंग टू गेट बैक टू यू इन द 5 minutes।
Tell me what's your name. Okay. Yeah, again, for Yes. the age one, Yes. the one I write, I will translate in English, but I am not sure whether it's correct in French. My sister is very young. My sister is very Very young. young. Okay. Yes. She is young. So L So A my sister L my sister. So it could Masa be ma Sir ma ma. What's for sister? It's swa. Sir Yeah, my swa is. Masa A I think very young. Very is I think trust. I guess. yes. Ma sœur est très June. jeune. June. Yeah. Jeune. Ma sœur Mm. est très jeune. And that's Yes. correct. Elle est très jeune. So you can write uh, ऐसे लिखना था वैसे प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला है. You can write like you'll see the young jeune femme, right? Young lady. Okay. Or young girl if you want to say. Jeune fille. Okay. Okay, correct. Yeah. Yeah. Usually. This is both for both. This is only single word I think because for masculine or you say feminine both have the same one germ. Okay. So सर मैंने लिखा सुनाऊं yeah, go ahead, go ahead. Then you tell me. मोए बियो पेरे Mobo fair. Okay, पेरे okay. My handsome father. Okay, very good. Mobo या fair. Very good. Okay. जोली फेरे Julie frère. फेर Yes, correct. Very good. और इसका जियोन फेरे फेर Yes, jeune फेर frère. फेर इसको अच्छे से व्यूज पढ़ो पहले. ग्रैन देखो फोनेटिक्स ठीक नहीं होगा जब तक आप खुद से पढ़ोगे नहीं से. अच्छे से पढ़ो. Frère. फखेर फ्रेर फ्रेर फ्रे फ्रे या फ्रेर बोलो अभी के लिए. फ्रेर फरारी फ्रेर. फ्रेर ओके. बाद में इसको र से ख पे स्विच करना है धीरे धीरे ट्रांजिशन. इट वुड साउंड लाइक फ्रेर फ्रेर खैर खैर नॉट ख. खैर फ्रेर. फखेर देखो ये आपको प्रैक्टिस करना है घर पे. र प्लस ख र. फखेर ओके. सो इफ आई से फ्रेर फ्रेर फखेर इट्स नॉट फ ख. फकेक र तो आ ही नहीं रहा है उसमें. फ्रेर. फकेर फरेक राइट Yes, frère. Yes, फरेक yes. Frère, क्रैक frère, फ्रे frère.
देखो मैंने फकैक इसे लिखने के पहले स्पेलिंग, तो इसको हिंदी मैं थोड़ा साउंड इजी रखता हूँ, तो मैं इसे पढ़ूंगा फ्रेर, फ्रेर, फरीर ओके फरीर ओके, जिससे ये फ्रेर हो गया। अब ओरिजिनल साउंड ये कैसे पढ़ते हो इसको, तो र को ख की तरह थोड़ा साउंड बिटवीन होना चाहिए, सो फ्रे, फ्रे, फकैर नॉट फके, इट्स फकैक फ्रे, फ्रेर, फकैक फकैक राइट फ्रे, फरे र, र यस, फरेर फ्रेड, फरेर यस, और यहाँ पे स्ट्रेस डालो, और ये ग्राफ का क्या मतलब है, स्ट्रेस डालना चाहिए, राइट, फरेक फरेक खैर, ना ही, फकैक देखो ये ख भी नहीं है ब्रो, ना ही ये र है, ठीक है, ना ही र है ना ही ख है, दोनों का कंपोज्ड साउंड जो आता है ना इन बिटवीन, एग्जैक्टली ये वो है। आपको पता है क्या प्रैक्टिस करने की जरूरत है घर पे, ये साउंड अपने थ्रोट से, अपने ये जो अपना थ्रोट है, डीप थ्रोट, यहाँ से हम लोग ये साउंड लाते हैं, ह ह ह, ठीक है, ठीक है, फकैक फरेक अपने थ्रोट, फरेक पहले वो छोड़ो, वर्ड को छोड़ दो, लीव इट, लीव दैट वर्ड, फोकस ऑन द साउंड विच इज से ह, ग ग ग ग इट्स ग नॉट र, मैं फकैक तो मैंने ग बोला ही नहीं, आई एम सेइंग इट्स र बट फ्रॉम थ्रोट, इट्स ह, 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 बिल्कुल नहीं बोला रहा है मेरे से ये र बोलो, र पहले थ्रोट से बोलो, र, र देखो र अखिल कैसे बोल रहा है, एफ, एक्ट अच्छा एक्ट ओके फ्रेंच में राइट एक्ट राइट एर्क तो है ही नहीं यार, कैसे, देखो थोड़ा टाइम लेके बोलो, डीप जाओ, वो आप अपने लिप्स से बोलते हो, ठीक है, लिप्स से नहीं बोल रहे हम लोग, आप लिप्स का यूज कर रहे हो, हम लोग थ्रोट का यूज कर रहे हैं, ह, लिप्स का कोई यूज नहीं है, नो यूज ऑफ लिप्स दिस टाइम, इट्स ओनली यहाँ से साउंड फ्रॉम थ्रोट, थ्रोट पे हाथ रखो, वाइब्रेशन हो रहा है, ह, ख ख ह, ख तो ख यस, तो वो वाइब्रेशन जब ख ख या ख र बोलते हो, तो वो जो वाइब्रेशन फील होता है ना थ्रोट पे, एक उंगली रख के देख सकते हो, अगर वहां पे थोड़ा लाइट वाइब्रेशन है, मींस दिस इज द साउंड, रख 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 राइट ह, रख ह, र पढ़ने आता है ना र हिंदी में, य, र, र र यस, अब उसको र थोड़ा और डीप करो, गो डीपर, र ह, र यस, र और deeper, र यस, नहीं हो ही नहीं रहा ये अब थ्रोट से बोलेंगे, थ्रोट से, नाजाल से, नो, नाक से कैसे बात करते हैं, नो नो नो, नहीं नहीं करना, नहीं, ठीक है, ये है नाक से, मैंने सुना है आपको, जब मैं थ्रोट से बोलता हूँ तो हा, हा, खैरियत, खैरियत, ख ख सब्बा खैर, ओके, उर्दू थोड़ा बहुत पता हो तो हेल्प मिलता है आपको, खैर खरा खरा ख, यस, आखिर ख आपको उर्दू आती है, अखिल, अखिल, डू यू नो उर्दू, हैव यू लर्न इट, आपके यहाँ बोली जाती है उर्दू, Forget, I सब can't understand that. yeah, do you speak Urdu, or do you know Urdu language, No, no, you don't, okay, no. because I thought, in Kerala people, do I speak Urdu, I think some of them, It's not Urdu, kind of Arabic by the Muslim Arabic, people. Yes, okay, Arabic. Yes, okay, Arabic, they do speak Arabic there, okay, yes. because I have, But but I huh, but not a majority of the population, but just a community. yes, okay, just a community who have migrated from Saudi Arabia, during that, Saudi Arabia and like yeah, that, especially Muslims. Yes, Muslims, yes, yeah, they okay. speak a kind of Arabic mixed with Urdu. Yeah, you are correct. Akhil is in Canada or somewhere else? Or in Canada. Yes. Okay. ठीक है, ये पता है मुझे कैसे लगा, केरल Yeah. में उर्दू बोलते हैं, लाइक नो हिस्ट्री, तो माइग्रेशन हैपेनिंग मेडिवल एंड Yeah. फॉर Yes. कुछ Yes. तो इम्पैक्ट हो सकता है, इज इट देयर, राइट, Yes. स्टिल That देयर बट वेरी लिटिल, राइट,
very yes. It's in the they're like the northern sides of Kerala. northern parts, because it's very close to Saudi Arabia. They used to travel to, so this Kerala part. Migration started from Kerala for the first time throughout this many routes. Then they call this weather as Mosam. So that Awesome, Arabic yeah. Mosam is an Arabic word. Oh, It's, like for monsoon? yeah, Mosam they call Mosam, and that Mosam later on become a weather for us. Mosam. Oh, In North okay, India okay, we say yeah. मौसम को as a weather, as a कि हाँ मौसम Yeah, अच्छा है, weather is fine, nice weather. तो मौसम, and monsoon word के लिए they used मौसम. yeah. So वो reference I Yeah, remember. like the where like we just passed like the Jolly, Joli, Mhm. Jolly. Yes. Yeah, we say in Kerala to Jolly, like for happy people, and Jolly also like हाँ means सर, war. ये हमें भी ना जोली, वो जोली नेचर क्या है, मतलब हैप्पी नेचर क्या है, गुड नेचर का बंदा है वो, Nice, खुश वाला, nice, but नाइस, does Yeah, not mean हाँ funny. नाइस। Does not mean funny, funny. yes. Funny is a different thing Yes. than being nice. One person can be हम्म। nice and may not be funny. Mhm. जैसे मैं हो सकता हूँ कि आई एम नाइस, बट मैं उतना मजाक के मूड में नहीं होता हूँ, तो आई एम नॉट दैट फनी टू. बट आई एम नॉट अ बैड गाय, आई एम नाइस गाय, राइट? बट आई एम नॉट दैट फनी टू. आई डोंट नो टू हाउ टू जोक, फॉर एग्जाम्पल जोक मारना या समथिंग. So I may not be that funny. I may be nice. So I may be happy. दोनों में डिफरेंस है फीलिंग्स, करेक्ट? और Yes. यस। फनी लोग वो होते हैं, एक मेरा स्टूडेंट है, आर्यन नाम है उसका. ही इज इन 6:30 मॉर्निंग बैच इन माय मॉर्निंग्स. सो ही इज वेरी फनी गाय. तो ही इज अ फनी गाय, वो हमेशा जोक मारते रहता है बीच में. और ही स्पीक्स वेरी लाउडर इन द क्लास. बाकी लोग हंसने लगते हैं क्लास में. Others laugh and he speaks in his own rhythm. That can be a kind of अच्छा, funny, but not Jolie अच्छा is a different. आर्यन, अच्छा, आर्यन को तो जानते हो ना? हाँ हाँ हाँ, आर्यन को जानते हो ना, तो वो कैसे वो बोलता है एकदम से बोलता है यस, ऐसा करके। हाँ, उसकी बात पे हाँ, सारे लोग हंसते हैं. एवरीवन जस्ट laughs. अमनप्रीत एंड सोनिया, एवरीवन जस्ट laughs. सानिया। Yeah. हम्म। अच्छा, आप 6:30 वाले बच्चे, 6:30 वाले में जानते हो सबको ना? यू आर देयर, हाँ, वो और सबको समथिंग. जानता हूँ, अमनप्रीत, सानिया, वो जिसका हस्बैंड सनी है। सनी इज देयर, हाँ. एक सनी. आयुष भी है उसमें, नहीं आयुष नहीं, आर्यन. आर्यन, आयुष तो इसमें है हमारे आर्यन, बैच हाँ में. हाँ. हाँ हाँ। मेरे पास बहुत सारे बैचेज हैं, तो हर जगह अलग अलग स्टूडेंट. सो ठीक है, आते हैं सिलेबस टॉपिक पे आते हैं. हम्म। सो ये हम जोली हो लोग, गया, या जूली हो गया, देन जॉन हो गया आई थिंक. जॉन फेयर सेम वही ब्रदर, ओके, जॉन फ्रेयर, या. या उसका व्यूक, ग्रैंड फेरे, हाँ हाँ. ग्रैंडफादर, यस. द न्यू व्यू, एमी, नूवोजामी. ओके. ठीक है. नोवोजामी, बॉन परसोने। इसके लिए आपने क्या यूज किया? व्यू ग्राम. अच्छा, आपने सारे मैस्कुलिन यूज कर लिए हैं, ठीक है ठीक है. इसलिए आपका करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे फैमिलिन फॉर्म्स चेंज होते हैं. दिस टर्न्स टू अनदर डिफरेंट फॉर्म. VIE for हम्म। feminine, ILLE. So they, whatever it is written here mostly are masculine. This premier is masculine. This premier is feminine now. हाँ, बाकी सारे उसके में बाद फेमिनिन है। मैस्कुलिन नहीं होता. दजियम थ्रोजियम में कोई फेमिनिन मैस्कुलिन नहीं होता, सारे एक ही होते हैं. ठीक है, जैसे ये दजियम इज हम्म। कैन बी यूज्ड फॉर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन टू. तो हम्म। लिस्ट आपको याद करना होगा. ठीक. एक ये मोवे. मोवस, मोवे. मोवस, यस, मोवे, क्यों पढ़ रहे हो? इस पढ़ते हैं एट द एंड. मोवे, वी डोंट रीड एस एट द एंड. इट्स मोवे. मोवे, गरे, मोवे. गार, गार, व्हाट इज इन माय कार? ट्रेन स्टेशन, हाँ, गार। okay. Movega. So it should be Movesga, because station is a feminine word. Remember Laga. ठीक है, तो मोवे मोवेस, नहीं, मोवेज होगा अब इस बार, बिकॉज इट्स फेमिनिन. ई लग जाएगा। यस, यून मोवेज गार्ड. मैं लिख दूं यहाँ पे? हम्म।
हाँ, जैसे कि होता है, जैसे मान लो ट्रैवल और ट्रैवियल, इफ कोई लड़की काम कर रही है तो वो उसको ई लग जाएगा ट्रैवियर के आगे। अदरवाइज कोई मस्कुलिन है तो ई नहीं लगेगा ना। यस, जनरली ई ऐड करके फेमिनिन बनाते हैं, बट हाँ, जनरली नॉट ऑलवेज। जैसे इत्यूदियंत हो गया, इत्यूदियंत लाइक स्टूडेंट, इत्यूदियंत बॉय के साथ यस। इत्यूदियंत आएगा, और फेमिनिन के इत्यूदियंत, राइट। नहीं, ई, इत्युदियंते ई लगाने से ए हो जाता है साउंड। नो, इत्यूदियंत मतलब कि हाँ वही सेम, कि फेमिनिन है तो इत्यूदियंत ई आएगा उसके अंदर, और मैस्कुलिन है तो। ई नहीं आएगा। और कैसे इत्यूदियंत, पढ़ेंगे? इत्यूदियंत, टी तो पढ़ेंगे ही नहीं ब्रो। जब टी है इत्यूदियंत। तो इत्युदियो पढ़ोगे ना, ये टी कैसे पढ़ सकते हैं आप? टी तो तब पढ़ते हैं जब हम्म, फेमिनिन होता है और ई के साथ आता है। कंपोज्ड होगा तो यहाँ पे पढ़ोगे, अकेले होगा तो कैसे ओके। पढ़ लोगे? कॉन्सोनेंट लेटर, जो साइलेंट लेटर मैंने आप लोगों को इतनी बार पढ़ाया है, आप हाँ लोग सब उसे वो रिवाइज क्यों नहीं करते? व्हाई डोंट यू प्रैक्टिस कर रहा रिवाइज हूँ। दैट? यस, तो यार एक एक चीज बार बार पढ़ाना, इसमें टाइम वेस्टेज हो जाएगा ना। हाई क्वालिटी टाइम यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग बार बार एक ही चीज को। एक तो आई एम टेकिंग सेशंस वेरी स्लो, हम लोग क्लास ऐसे भी स्लो पेस में लेते हैं, आराम से पढ़ते हैं। और उसमें भी एक ही हम्म, चीज 10 बार पढ़ना पड़े तो इट्स काइंड ऑफ वेस्टेज, रिसोर्स वेस्टेज होंगी हमारी। तो हमें वट एवर वी आर डूइंग, वी शुड डू इट इन इट्स कंप्लीट फॉर्म। कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे, राइट? अदरवाइज यस जैसे सर। फिनिश नहीं करते हो आप चीजें, ओपन छोड़ते रहोगे हमेशा, तो कभी भी कुछ भी फिनिश नहीं होगा। तो फिनिश करना होता है, हम्म, कहीं रैप अप करना होता है कि अच्छा यहाँ पे ये क्लोज करता हूँ, मैंने यहाँ इसको सीख लिया है एक लेवल तक, अब दूसरे वर्जन दूसरे पार्ट में सीखूंगा, अभी यहाँ तक ये डन। तो इस तरह से क्लोज करो सारी चीजें। सो एक बार पहले साइलेंट लेटर्स भी एक बार रिवाइज करके आओ, ठीक है? क्योंकि हर श्योर सर। बार आप पढ़ते हो धर्मजीत, स्पेशली आप में मैंने देखा है आप हर बार साइलेंट लेटर्स पढ़ते हो और ई हम्म, को ए पढ़ते हो। पहली बात ये याद रख लो कि ई लेटर साइलेंट है, आज के बाद ये याद रख लो, ठीक है? लेटर ई एट द हम्म, एंड, इसको साइलेंट याद रखो, ठीक है? श्योर। अच्छा, अब इसे पढ़ो। ये क्या पढ़ोगे? इसको लेटर ई साइलेंट है, इसे छुपा दो। द्रो, लेटर ई साइलेंट है, बाकी सब तो पढ़ना है। द्रोल, द्रो, ध्रोल। इल, द्रोल, ध्रोल। अरे कॉन्सोनेंट द्रोल। जब ऐसे लिखा जाता है तो एल नहीं पढ़ते, लो पढ़ते हैं, राइट? लो। ओके। एज अ लेटर आप एल पढ़ते हो, बट एज अ साउंड इन अ सेंटेंस इट बिकम्स लो कॉन्सोनेंट। आप पी को पे थोड़ी ना पढ़ोगे सेंटेंस में, इसको द्रोल। पे को। अब देखो, पी जैसे किसी वर्ड से, पी से कोई वर्ड शुरू हुआ, तो इसे क्या? परसोने लिख लो। पेर्सोने नहीं, दिस इज पेर्सोन। परसोन। आप सॉरी। पेर्सोने ए क्यों कहते हो? बिकॉज ई से एंड होता है, राइट? मैं लिखता हाँ हूँ वो, वही वर्ड, हाँ, राइट? यस सर। ये तो मान लो ये लेटर ई एट द एंड क्या होता है, मान लो साइलेंट। साइलेंट। मैं मिटा दूं इसे, मतलब लिखने में यूज हाँ। करेंगे, बोलने में मैं मिटा दूं इसे, while speaking हम्म, आई एम जस्ट इरेजिंग इट फॉर स्पीकिंग कन्वीनियंस। अब पढ़ो इसे। परसों। मैंने कहा पूरा पढ़ो, यहाँ पे पेरसों क्यों पढ़ा? एन किसने मना किया है? अब पूरा पढ़ना है, जब ई परसों, हटा दिया तो। परसोन। पेरसोन। हम्म, पेरसोने क्यों पढ़ा? परसों। पहले क्यों पेरसोने नो नो, पढ़ा? वो गलती से आदत पड़ी हुई है ना मेरी। ओके, तो ये ठीक कर लो अपना, क्योंकि ये साउंड तो मैंने बता दिया है ना। अब इसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? हैबिचुअल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट? वो तो आप प्रैक्टिस से रिमूव कर लोगे, राइट? यस सर। ठीक है। अब देखो, कॉन्सोनेंट एट द एंड ये लिखा हुआ है, ठीक है? ये लिखा हम्म। हुआ है टी, ये लिखा हुआ है डी, इन सबको पढ़ोगे? नहीं, एट द इनको एंड नहीं साइलेंट पढ़ेंगे। करोगे। अब हाँ, पढ़ो डी को सबको, नहीं पढ़ेंगे। अब पढ़ो सबको। ओके। ओके, ग्रा, ग्रॉ, फो, फॉर, ग्रो, फो, यस। द्रो, ध्रोल, ल कौन द्रोल। पढ़ेगा? मैंने बोला है द्रोल। ओके, तो हो गया ये साउंड। आप जो अगर ऐसे पढ़ने लगो तो ठीक हो जाएगा। हम्म, तो ई को साइलेंट ही काउंट कर लो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाए जो मैंने बताया था। तो ई साइलेंट भी है वैसे, ठीक है? इसको हम्म। हटा दो। अब पढ़ो फिर से। इंटेलिजेंट, एटेलिजोंत, इंटेलिजेंट,
हो गया करेक्ट साउंड। नहीं तो एलिजोंते हम्म पढ़ रहे थे इतना दिन से। अब ठीक हो गया, हम्म, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो हाँ अब गई। सही है। हाँ ठीक है। फैम, वो फैम में मैं पहले फैम में बोलता था उसको मैं, उसका अब हाँ अब मैंने याद डाली फैम। हाँ यस, तो यहाँ पे ई को इसको भूल जाओ कि ई है भी यहाँ पे, हम्म तब पढ़ोगे तो सही आएगा। लेकिन लिखने समय मत भूल जाना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। लिखने समय पढ़ोगे, ठीक है, लिखने समय लिखोगे इसको। यू वुड राइट इट while writing the sentences. हम्म You would not speak it while speaking it. I mean ये ही तो श्योर। है फ्रेंच, otherwise what is French? French में there's nothing, no complexity at all. It's super simple otherwise. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई अगर मैं हटा दूँ तो पढ़ लोगे फिर है, ई मैंने हटा दिया, पढ़ो वो कहाँ पर हो? ये वाला। ओके, उन पित कैसे? उन पे ते पे ए कहाँ से आ जाता है यार तुम्हारा? ई को क्या पढ़ते हो? ई को अल्फाबेट्स रिवाइज करो प्लीज, रिवाइज द अल्फाबेट। हम्म, पे पा पे 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 आ क्यों है यार, ये पे है ही नहीं। पे को तो पहले पी, अगर ऐसे पे लिखा होता है लेटर में, हम्म एज ए लेटर ये पे होता है, बट सेंटेंस में प पढ़ते हैं, राइट? हम्म, तो प प्लस ई को क्या पढ़ते हो? अ। पा तो क्या होता है, प होता प है। प तो प, तो को पे क्यों पढ़ रहे हैं पहले? प तित राइट, पतित। पतित। अल्फाबेट्स आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा धर्मजीत, एक बार फिर से, ठीक है? हम्म अल्फाबेट्स फर्स्ट लेशन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेशन। वो पता होता तो ये गलत पढ़ नहीं पाते आप, क्योंकि अ का साउंड आपको नहीं याद है, हम्म, ए का साउंड आपको नहीं पता है। ये एक्सेंट वाला लेशन देखो, यहाँ एक ये पढ़ते हो, ए ठीक अ है? अ बे से इट्स नॉट अ क्या बे हुआ? से, इट्स आ बे। आ चलो अब लेटर बे अल्फाबेट पढ़ो, अब अल्फाबेट में आ जाओ। ये सारे A1 खत्म करने के बाद अब अल्फाबेट फिर से मत पढ़ाओ। आ जाओ, कहाँ गया अल्फाबेट? चलो कहीं ना कहीं होगा, किसी में देख लेते सबसे हैं। फर्स्ट क्लास में होएगा ये अल्फाबेट। मतलब ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि A1 खत्म करने के बाद हम लोग अल्फाबेट से शुरू करेंगे फिर, अगेन नहीं यू नो। सर, मेरी थोड़ी आदत बनी हुई है, प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत है हैबिचुअल मेरी। चीजें नहीं कर सकते यार, इन्हें सुधार लो, एकदम ठीक कर लो, पूरी तरह से ठीक कर लो। ये बेसिक्स है, राइट? इसमें तो कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, राइट? हम्म आपके अलावा इसमें आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो गो विद द लेटर्स, गो स्टार्ट रीडिंग इट। आ आप आ साउंड्स को पूरा पढ़ो, ऐसे आ करके खत्म नहीं करना है, पूरा पढ़ो। आ, ओपन माउथ, कंप्लीट ओपन माउथ, आ। आ जैसे डॉक्टर को दांत आ दिखाते समय पूरा माउथ खोलते हैं हम, वैसे ही। आ यस आ बे यस से यस। दे उ ई Of, जे it's not if, अफ it's of. अफ Okay. अफ जे अश ई जी के इल Ka, it's ka. का का Yes. का इल इम इन ओ पे कु इर व S, वे इस S. एस राइट, Hmm. ते इव वे डब्ल्यू एक्स इग्रेक जेड Z. जेड Yes. तो यही है लेटर्स, एक बार फिर से पढ़ो। आ बे से दे उ इफ
It's not oo Z basically. O for O plus O it's like rounded mouth. So O O uh, O okay if of F Z H I Z K L A um M N O P Q R S T U V W X Y Z. चलो ठीक है मच बेटर सही पढ़ रहे हो अभी सही करना एडजेक्टिव समझ में आया फ्रेंच का एडजेक्टिव कैसे इट्स डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश राइट एंड एक्सेप्शन इज क्वाइट Yes, क्लोजर सिमिलर yes sir. सर मान लो देखो मैंने लिखा zen